Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fayyaz Muhammad. Dear student, I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. We are discussing advanced web application development course, and this is lecture number 17. What are the learning objectives of our today's lecture? These are the learning objective of today's lecture. We will start from what are ASP.NET Core application, or what types of application we can develop using ASP.NET Core framework. Next, we will discuss the steps to create ASP.NET web applications. Next, we will check what types of project types are provided to us by Visual Studio 2019. Next, we will discuss project and solution. Next, we will discuss what are templates and what is their role. Next, types of templates. These constitute project templates and item templates. In the last, we will have a demo how we can create ASP.NET Core MVC applications. Dear student, this is the summary of last lecture. In last lecture, we discussed characteristics of modern web application. Then we discuss ASP.NET Core MVC framework. Then approaches to building web application. Next, we discuss when to use traditional web application. Next, we discussed when to use single page application, SPA applications, yeah, SPA. In the last, we created our first ASP.NET Core MVC application. Dear student, these are the online resources that are consulted for the creation of this lecture, and you are also required to consult these online resources for clearing your concepts. Let's start. What are ASP.NET Core application, or what type of application we can develop using ASP.NET Core framework? Following types of application that can be developed and easily deployed on any cloud or on premises platform by using ASP.NET Core framework. And this is the purpose of our course, to develop and deploy ASP.NET या वेब एप्लीकेशन. ये हमारे कोर्स का पर्पस भी यही है कि हम वेब एप्लीकेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनको डिप्लॉय कर सकते हैं. लेट्स सी, वी कैन क्रिएट web applications, we can create web services, we can create internet of things IoT application and mobile backend services by using ASP.NET Core framework. The framework also provide us ready to use project application or item templates. By using these predefined item templates, we can create our project very fast. And similarly, by using this framework, we can easily integrate various client side frameworks and libraries. अब हमें जब क्लाइंट साइड पे बहुत सारे, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट और टू थर्ड, इन फर्स्ट थ्री लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था व्हाट टाइप्स ऑफ क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल इन टुडेज वर्ल्ड. तो उन फ्रेमवर्क्स को हम आसानी से ASP.NET कोर फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हम इनको किस तरीके से इंटीग्रेट करके अपना काम ले सकते हैं. नो, ASP.NET Core MVC application
creation using Visual Studio 2019। विजुअल स्टूडियो 2019 सबसे पहले हमारे पास हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद अब फ्रेमवर्क जो भी यूज करना चाह रहे हैं, आपने अगर विजुअल स्टूडियो के साथ इंस्टॉल किया इट्स ओके, अदरवाइज आप अलहदा से भी उसकी एसडी के उस रन टाइम की या डॉट नेट की एसडी के आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर दी प्री रिक्विजिट्स Visual Studio 2019. This is you can download it from Microsoft website, and it's free community edition for students. And Visual Studio 2019 provides us main integrated development environment, and in this environment we can write, compile, debug, and optimize our C# programs. And the other thing that we need for the creation of ASP.NET Core MVC application, NetCore 3.0 SDK, .NET Core या NetCore 3.0 SDK या रन टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और these are the general steps. First of all, we will open Visual Studio, then we will select a new project, and uh, then we will select ASP.NET Core web application, then click next. Then we will give a name of the project, and बाकी options as it is हम उनको default रहने देंगे। Then we will select web application model view controller template and click the create button. Then we will select solution explorer and expand the project tree। और इसी लेक्चर के एंड में हम एक डेमो मैं आपको एक डेमो भी दूंगा कि हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, और इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोवाइडेड टू अस बाय विजुअल स्टूडियो 2019। हम वी कैन डेवलप कंसोल एप्लीकेशन, वी कैन डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, we can develop web application, mobile application, IoT, internet of things, games, library, etc. ये these are the types, few of the types provided to us by Visual Studio 2019 for the project creation. Next, what is a solution? Whenever we create an app in Visual Studio 2019, ए प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड अलोंग विद अ सॉल्यूशन। एप्लीकेशन जब भी हम कभी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस प्रोजेक्ट क्रिएशन के साथ साथ ऑटोमेटिकली एक सॉल्यूशन भी क्रिएट हो जाएगा। अब देखना है व्हाट इज ए प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज ए सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज ए सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज ए कंटेनर फॉर वन और more projects or set of projects that make up a particular application along with build information। कि solution क्या है? एक कंटेनर है, और ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स सेट ऑफ प्रोजेक्ट, वन और मोर देन वन प्रोजेक्ट जो उस एप्लीकेशन का हिस्सा होंगे, और उसके साथ साथ इसमें बिल्ड इंफॉर्मेशन भी होगी। और प्रोजेक्ट क्या चीज है? प्रोजेक्ट इज ए टेक्स्ट फाइल having extension .sln, and this text file has its own unique format, and there is no need to edit it by hand, means इसकी मैनुअल एडिटिंग की आपको जरूरत नहीं होती। दिस फाइल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द विजुअल स्टूडियो 2019, एंड इट कंटेन्स, जैसे मैंने बताया, एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट इसमें होंगे, और उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की, उसकी बिल्ड करने की इंफॉर्मेशन इस कंटेनर के अंदर होगी। सॉल्यूशन ओनली कंटेन्स प्रोजेक्ट्स, मतलब सॉल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोजेक्ट्स के अंदर सॉल्यूशन नहीं होंगे। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी नेस्टेड, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कैन नॉट बी नेस्टेड।
नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स कैन बिलोंग टू मल्टीपल सॉल्यूशन। प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने बताया, एक सॉल्यूशन में सिंगल सॉल्यूशन कैन हैव मोर देन वन प्रोजेक्ट्स एंड a single project can belong to multiple solution। और सिर्फ जब कभी भी आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, उसमें एक वक्त में एक ही सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन मौजूद नहीं होंगे। वो हम अपनी डेमोस्ट्रेशन में भी देखेंगे किस तरह से है वो। एंड व्हाट इज ए प्रोजेक्ट? अगेन, इट्स ए कंटेनर। A project has two main jobs to perform. Number one is it acts as a container for our source file। जैसे हमने सी शार्प में देखा, हमने बहुत सारे अपने प्रोग्राम जो भी लिखने की कोशिश की, तो वो हमारी सोर्स फाइल्स थी। तो ये प्रोजेक्ट solution is a container for project, and project is a container for our source file and other files, and its second job is to compile द फाइल इट कंटेन्स। जिन फाइलों को ये कंटेन करता है उनको क्या करेगा, ये कंपाइल करेगा टू प्रोड्यूस एन असेंबली। एंड टिपिकली द असेंबली कैन बी डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, DLL, विंडोज exe फाइल। Project hold items needed to build your app such as source code files, bitmaps होंगे, icons होंगे, and components and other services references। जो services आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, प्री बिल्ड सर्विसेज हैं, तो वो उनके रेफरेंस हम इंक्लूड करते हैं। वो सारे के सारे प्रोजेक्ट फाइल होल्ड करेगी। और इसके अलावा कंपाइलर सेटिंग होंगी कि इस प्रोजेक्ट को कैसे कंपाइल करना, अदर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, वो हम आगे देखेंगे वो कौन कौन सी फाइलें हो सकती हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, every project you create in Visual Studio 2019 will be stored on this default location user profile। जिस नाम से आप लॉगिन या यूजर बना हुआ है, उसके बाद वो उसको जहां वो यूजर क्रिएट हुआ हुआ जिस डिस्क पर, उसमें सोर्स का फोल्डर होगा, फिर एक रिपोज फोल्डर होगा, यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट स्टोर होगा। यू कैन चेंज दिस डिफॉल्ट लोकेशन। वो कैसे कर सकते हैं? आप विजुअल स्टूडियो के मेन मेन्यू पे टूल्स को क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग टूल्स ऑप्शंस, देन आफ्टर क्लिकिंग ऑप्शन देयर विल बी लॉट ऑफ ऑप्शंस। फ्रॉम देयर यू विल चूज प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन, एंड फ्रॉम अवेलेबल लिस्ट यू विल चूज लोकेशन। आप यहाँ जो लोकेशन दे देंगे, फिर आप जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। अगर आप, इवन इफ एन एम्प्टी प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड, विजुअल स्टूडियो 2019 जनरेट सेवरल न्यू फाइल्स। बहुत सारी नई फाइलें क्रिएट करेगा। वो क्यों क्रिएट करता है? जैसे मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, विजुअल स्टूडियो 2019 प्रोवाइड्स अस अ फास्टेस्ट project or application development cycle। नेक्स्ट इज टेम्पलेट। व्हाट आर टेम्पलेट्स? जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत सारे प्री बिल्ड टेम्पलेट मिल जाते हैं। ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं? लेट्स सी व्हाट आर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क एंड कोड। कोई स्ट्रक्चर होगा, फ्रेमवर्क हो सकता है, और उसके साथ कोड होगा, दैट आर हेल्पफुल टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट क्विकली एंड इजीली। With the help of templates, we can start our project very quickly and easily. Whenever you install Visual Studio 2019, lot of templates will be automatically installed with the Visual Studio 2019. These templates have two types. Number one is project template and number second is item templates. Project templates are available whenever you create a new project, at the time of new project creation, and item templates are available after creation of the project. In your project you needs various types of item, and Visual Studio 2019 provides you with the help of
ASP.NET Core Framework, various items, template that you can use in your project. Next, we will discuss what are the project templates, what type of project templates. Project templates can be installed with Visual Studio 2019, or you can develop your own project templates, or you can download various templates developed by the Visual Studio community or ASP.NET Core Application Developers Community. या तो विजुअल स्टूडियो के साथ इंस्टॉल हो जाएंगे, या आप खुद ही डेवलप कर लेते हैं, या आप उनको वो जो कम्युनिटी ने आपको डेवलप करके रखे हुए आप उनसे लेकर उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं. प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स, these are the few of the templates provided to us by Visual Studio 2019 for ASP.NET Core Web Application. empty template है, वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर, सबसे पहले हम इसी को यूज करेंगे. फिर API है, लास्ट में हम ये भी देखेंगे. वेब एप्लीकेशंस या एंगुलर, रिएक्ट जे डॉट जेएस, रिएक्ट डॉट जेएस एंड रिडक्स, ये बहुत सारे प्री बिल्ट प्री डिफाइन प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर्स हैं, और इनकी मदद से हम अपना प्रोजेक्ट वेरी एफिशिएंटली डेवलप कर सकते हैं. आइटम टेम्पलेट्स, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइटम्स आर प्रोवाइडेड by Visual Studio 2019 to us. These includes code files, pre-built C Sharp की हो सकती हैं, या जो whatever language you are using उस लैंग्वेज की आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल सकती हैं. इस तरह XML फाइल्स होंगी, इस तरह HTML पेजेस होंगे, स्टाइल शीट्स होंगी, या आप अपने भी आइटम टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं. वो किसी भी प्रोजेक्ट में फिर आप उनका रेफरेंस यूज करके यूज कर सकते हैं. Dear student, now we will start our demo how we can create ASP.NET application in Visual Studio 2019. Let's start. Dear student, let's check how we can start an application. First of all, we will start Visual Studio 2019. This is Visual Studio, the shortcut of the Visual Studio 2019. Let's click it. After clicking, Visual Studio is going to be loaded, and now it's loaded. You can see in the left portion, it is displaying us the various recently opened project, and this right sides is used to create new project. From here we will select create new project, and after selecting it, this window will be opened, and it is displaying the recent project templates, and these are the available project templates. आप यहाँ देख सकते हैं कि लैंग्वेज आपने कौन सी चूज करनी है. सपोज दीज आर द लैंग्वेजेस provided by Visual Studio. See, we select C Sharp, and here the operating system then we want to use in our application, or in this drop down list I selected Windows. Next, the type of the application या project types जो हमने अपने लेक्चर में भी डिस्कस की. these are the types of projects available here. अगर आप इसको ऑल प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, देखें ये फिर आपको कंसोल ऐप का भी बता रहा है, ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन, ब्लेजर का भी बता रहा है, क्लास लाइब्रेरीज का भी बता रहा है. तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट टाइप्स. या आप कोई पर्टिकुलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे सपोज आपने क्लाउड को किया तो ये क्लाउड बेस आ जाएंगी. अगर आप चाह रहे हैं डेस्कटॉप बेस करें तो ये सारी की सारी प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स आ जाएंगे
डेस्कटॉप के लिए। जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया कि टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो उसने चूंकि कोई इंस्टॉल नहीं किया तो वो हमें कोई टेम्पलेट भी प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हम अपना देखते हैं, वी वांट टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वेब टाइप के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हमें पता लग गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे सी शार्प, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज, और प्रोजेक्ट किस तरह का है, वो वेब टाइप का है। वेब टाइप के प्रोजेक्ट्स में देखें, ये आपको जैसे अभी मैंने लेक्चर में भी आपको बताया, ये सारी के सारी टाइप्स, ये टेम्पलेट्स दे रहा है। ये विजुअल स्टूडियो जो मैंने इंस्टॉल किया, विद द इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए। वहां से ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट की। फ्रॉम हियर वी विल सेलेक्ट ASP.NET Core वेब एप्लीकेशन। नाउ दिस इज highlighted. After clicking it, then we will press or click next button. Now here you can configure your new project. As I told you in this lecture, okay, this project will be stored on this default location, and you can change this default location. It's up to you where you want to store your project. Excuse me. Next, we will click create button. Now, after clicking it, following are the available templates for creating new ASP.NET Core web application. From this drop down, you can select your framework. Here it is providing us two types of frameworks. Number one is .NET Core and number second is .NET Framework. अगर आपकी कोई पुरानी एप्लीकेशन है, आप उसको इससे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो आप .NET फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम नई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम .NET कोर को सिलेक्ट करेंगे, और ये हमें उसका लेटेस्ट वर्जन नंबर प्रोवाइड कर रही है। ASP.NET Core 2.1 या ASP.NET Core 3.1। हमने यहाँ से क्या किया, सेलेक्ट किया ASP.NET Core 3.1, and these are the available templates. These are the available templates. This is empty, this is API as we discussed in our lecture. This is web application, this is वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर। और ये साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग एन ASP.NET कोर एप्लीकेशन विद एग्जांपल। वो ऑटोमेटिकली आपको करेगा। हम देखते हैं, एंगुलर यूज करना है, रिएक्ट जेएस करना है, रिएक्ट जेएस एंड रिडक्स करना है, या आप अपनी मर्जी से भी कोई टेम्पलेट यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, अपना टेम्पलेट भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करते हैं, वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये टेम्पलेट हमने सेलेक्ट किया। ये फ्यू ऑप्शंस हैं, हम कमिंग डेज में देखेंगे कि हमने इसको डॉकर को इनेबल करना है या नहीं करना। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब ये बता रहा है कि ऑथर इसका कौन, माइक्रोसॉफ्ट है इस टेम्पलेट का, और सोर्स .NET कोर 3.1.5। अब वी विल क्लिक क्रिएट बटन। नाउ इट इज क्रिएटिंग। What it is creating, it is creating a solution and project for you. As I told you in this lecture, that whenever you create a new project, then a solution and a project will be created. जब कभी भी आप प्रोजेक्ट अपना नया बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ एक सोल्यूशन भी क्रिएट हो जाता है। अब वो सोल्यूशन क्या है, मैं भी लेक्चर में भी बता चुका हूँ। इट्स ए कंटेनर। देखें यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, दिस इज द सोल्यूशन। इट कंटेन्स set of projects या other configuration for this application, और you can see one of one project means कि इस solution के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, और द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज वेब एप्लीकेशन 6। and what is a project? As I told you, it is again a container, and it has two important jobs to perform. Number one is to
hold the items that are used for the creation of this application and it's also acts as a container। अब आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इस प्रोजेक्ट में कंटेन है। और मैंने पहले भी आपको बताया एक एप्लीकेशन में एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ये ज़हन में रहे। लेकिन एक एप्लीकेशन के अंदर दो सॉल्यूशन नहीं होंगे। इट मीन्स solution cannot be nested, but projects can be part of various solution। मीन्स ये वेब एप्लीकेशन 6 किसी और सॉल्यूशन का भी हिस्सा हो सकता है। वो हम देखेंगे कि ये हम यहाँ प्रोजेक्ट डेवलप कर लें और फिर इसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी हम इस्तेमाल कर लें। दिस इज द वे हाउ वी कैन क्रिएट एप्लीकेशंस यूजिंग विजुअल स्टूडियो 2019। अब इस एप्लीकेशन को चलाकर भी देख लेते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी, ये भी उसी की रेप्लिकेशन है। लेकिन आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी थी वो ये थी कि प्रोजेक्ट टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद टेम्पलेट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, फिर उन टेम्पलेट्स की हमने टाइप्स देखी कि हमारे पास प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स हैं तो हमने एक टेम्पलेट यूज़ किया। विद द हेल्प ऑफ दैट टेम्पलेट आपने देखा ये उसने काफ़ी सारी फाइलें और कुछ फ़ोल्डर क्रिएट कर दिए और ये एप्लीकेशन बना कर दी। एंड दिस एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटिंग नो एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ आर एप्लीकेशन। देखिए हमने वी हैवंट टाइप ए सिंगल लाइन ऑफ कोड, बट उसने पूरे का पूरा हमें देखें होम पेज भी प्रोवाइड कर दिया, प्रीवेसी के लिए भी हमें प्रोवाइड कर दिया और आप ये इसको मूव भी नेविगेट भी करके देख सकते हैं। ये सारा का सारा उसने कैसे किया, ये जो हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट प्रोजेक्ट का सिलेक्ट किया था उसकी मदद से किया था। आप एक एमटीबी प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको सारी चीज़ें मैनुअली बाय हैंड उसमें इनकॉर्पोरेट करनी होंगी। अब आप देखिए हमने एक और लास्ट चीज़, द लास्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस कि ये प्रोजेक्ट बना विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्ट टेम्पलेट। फिर हमने एक टर्म यूज की थी आइटम टेम्पलेट्स। वो क्या होते हैं? अब आइटम टेम्पलेट्स के लिए देखें, मैंने इसको कंट्रोलर फोल्डर को क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग राइट देखें ये हमें प्रोवाइड कर रहा है ऐड। ऐड में हम आगे ऐड न्यू आइटम विंडो हम ओपन करेंगे। अब ये न्यू आइटम हमने इसको क्लिक किया तो दीज आर दी लॉट ऑफ आइटम टेम्पलेट्स प्रोवाइडेड to us by Visual Studio 2019। These are pre-built। आप अपने भी बना के रख सकते हैं या इन्हीं में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे हम इनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। Dear student, as you have seen, it's very easier to create ASP.NET Core application using Visual Studio 2019। This is the summary of our today's lecture. We have started our lecture from ASP.NET Core applications, or what type of application we can develop using ASP.NET Core framework. Then we discussed steps to create ASP.NET web application. Next, we have discussed what type of projects types provided us by Visual Studio 2019. Next, we discussed what is a project and what is the solution. Next, we discuss what are templates and types of templates. We discussed two types of templates provided us by Visual Studio 2019, project template, and next is the item templates. After discussing item templates, we have created our ASP.NET Core MVC application. Dear student, you are also required to practice it.
As you know, practice makes a man perfect. Keeping this in mind, you are required to create three types of प्रोजेक्ट्स एमटी, वेब एप्लीकेशन एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये तीन तरह के कम से कम आपको एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स बनाकर देखने चाहिए। नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। थैंक यू।